اویسی صاحب جو کہ AIMIM کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. KC تیاری جی JDU کے پورو سانسد ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. شہنواز حسین صاحب کچھ دیر میں جڑ گئے ہمارے ساتھ. راکیش سنہا جی سنگ وچارک ہمارے ساتھ ہیں اور کمال فاروقی صاحب جو کہ صدر ہیں آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ کے وہ ہمارے ساتھ آ گئے. سب سے پہلے اویسی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے کئی لوگوں کی پرتکریا دکھائی جو کہ مسلم پرسن لا بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نہایت ہی بچکانا اور بھولے پن کا فیصلہ اور ایسی امید اور ایسی بات کر رہے ہیں اویسی صاحب. سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو آپ کی راجنیتی اب تک رہی ہے اویسی صاحب اس کے وپریت جاتے آپ دکھائی دے رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حج سبسڈی کے خلاف بول کر آپ پروگریسو مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیں گے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ نہیں، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے پروگریسو کا اور بیکورڈ مسلمان کا تو مجھے دے دیجئے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں. جب سے میں پارلیمنٹ میں گیا ہوں میں نے بار بار اس بات کو اٹھایا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے نام پر یہ سبسڈی مسلمانوں کو نہیں بلکہ ایک لاس میکنگ ایئر لائنز کو دی جاتی ہے. ہمارے نام پر ایئر انڈیا کو اس کے لاسز کو ختم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سال 450 کروڑ کی سبسڈی ہے. اگر 450 کروڑ کے پیسے کو مسلم بچیوں کے تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے گا تو قریب 200 اسکول بنیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمان جو حج پہ جاتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں، فائنینشیل ویربطول ہے، وہی حج کرنے کے لیے جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے حالیہ فیصلے میں کہا کہ ریلیجیس ایکٹیویٹی کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اس کو بھی سامنے رکھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی یا ریلیجیس فنکشن میں اپنا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اپنے مذہب پر چلتا ہوں تو مجھے اپنا پیسہ خرچنا چاہیے، چاہے اسلام ہو، چاہے ہندو دھرم ہو، چاہے اس کی کوئی اور دھرم ہو. کیوں گورنمنٹ کا پیسہ اس میں استعمال ہوگا؟ ہاں، اسکالرشپ ہے، اسکولز بنانا ہے، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. چونکہ سپریم کورٹ کا بھی جو یہ فیصلہ آیا تھا جس میں جسٹس آفتاب عالم اور انجنا پرکاش دیسائی تھے، اس بینچ میں جسٹس نے آفتاب صاحب نے یہی کہا تھا کہ تبھی مکمل ہے حج یاترا جب آپ اپنے پیسے سے کریں، ایسا اسلام میں مانا جاتا ہے. میں آپ سے شہنواز حسین صاحب اب اس پر سوال کرنا چاہتی ہوں. ان کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا، اور دلچسپ ہے کہ آپ فارمر ایویشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ایئر انڈیا جیسے لاس میکنگ ایئر لائنز کو پیسہ دیا جاتا ہے، یہ سیدھا آروپ ہے جو اکراس دا پلیٹ فارم تمام لوگ لگا رہے ہیں. ایسے میں کیوں نہیں اسے ختم کیا جائے؟ آپ کی سرکار کیوں نہیں بڑھتی دکھائی دیتی اس طرح؟ دیکھیے، حج کے معاملے میں یہ آروپ لگتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایئر انڈیا کو سبسڈائز کیا جاتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. جب میں بھی ایویشن منسٹر تھا تب بھی یہ بات آئی تھی اور اس وقت ہم نے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کو ایک بار بلا کے سبسڈی پر بات چیت کی تھی اور وہ پہلی بات چیت تھی. اس وقت بنات والا صاحب تھے، سلمان سیٹھ تھے، بڑے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ سب تھے. میکسیمم لوگوں کی رائے تھی کہ سبسڈی ختم ہونی چاہیے. آپ کو سن کر یہ تعجب لگے گا کہ جو اویسی صاحب کی رائے ہے وہی بہت لوگوں کی رائے تھی. ایک دو لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں، سبسڈی جاری رہنی چاہیے. کئی مسلم دیش ہیں جو سبسڈی نہیں دیتے، کئی اور ملک نہیں دیتے. اور صحیح کہا اویسی صاحب نے کہ حج فرض ہے اور وہ اس کے لیے ہے جس کے پاس وہ حیثیت ہے حج کرنے کی. تو حج پر پہلے جب کوٹا تھا تو واجپئی سرکار میں قریب 12,000 روپے کی سبسڈی تھی کیونکہ ٹکٹ سستا تھا. دھیرے دھیرے وہ ٹکٹ بھی مہنگا ہوتا گیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو سبسڈی ہے، جسٹس آفتاب عالم صاحب کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا جو آپ نے بتایا بھی ہے کہ یہ 10 سال میں فیز آؤٹ ہونا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت اگر ہماری سرکار ہوتی تو یہ کہہ دیا جاتا کہ بی جے پی سبسڈی ختم کر رہی ہے. یہ پروسیس پچھلے کئی سال سے 10% ہر سال سبسڈی ختم ہو رہی ہے کیونکہ میں سینٹرل حج کمیٹی میں بھی پچھلے 10 سال رہا ہوں اور اس میں بھی یہ چرچا ہوئی ہے. لیکن جو اویسی صاحب کا سوال ہے
ये जी ओवैसी साहब का जो सवाल है, जो आपके दर्शक सोच रहे होंगे कि ये सब्सिडी एयर इंडिया को दी जा रही है, बात यह है कि जब आप सऊदी अरब उम्रे के लिए जाते हैं तो किराया कम होता है, लेकिन जब आप हज के लिए जाते हैं तो वो किराया ज्यादा होता है। कई बार जब ये शिकायत थी तो इसके लिए बिड भी किया गया, लेकिन जब जहाज बड़ी तादाद में हाजियों को लेके जाता है तो एक तरफ से तो जाता है, दूसरी तरफ से पूरा खाली आता है, तो आप एक तरफ का किराया नहीं है। अगर 2 बार जा रहे हैं तो समझिए 4 बार जा रहे हैं। तो एयर इंडिया का भी अपना तर्क है, एयर इंडिया के लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं आपको उनके बारे में ये पक्ष रख दे रहा हूँ। ओवैसी साहब सहमत नहीं है, एक बार उनका पक्ष भी आ जाए। सब्सिडी 10 साल में खत्म होनी है और एयर इंडिया नहीं ओवैसी साहब से हज पर मेरी बराबर बात हुई है और पिछली बार भी जो कुछ सुधार हुए थे उसमें भी बात हुई है। मैं तो ये तर्क दिया कि जिससे कहाँ असहमत होंगे वो कि एयर इंडिया एक बार जाती है तो दूसरी बार हज के वक्त में तो खाली आती है ना, ओवैसी साहब ये मैंने कहा। नहीं, शाहनवाज साहब जो है वो एविएशन के मिनिस्टर रह चुके हैं और ये बात कह रहे तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सारी दुनिया से हाजी जाते हैं वहां पर हज करने के लिए और वो अपने अपने मुल्क की एयरलाइन से जाते हैं, उनको लॉस क्यों नहीं होता फिर? और जब शाहनवाज खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी नहीं देती है, आप ग्लोबल टेंडर बुलाइए, ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट आपका और सऊदी अरब का खत्म करिए, ग्लोबल टेंडर बुलाइए और देखिए कि कीमतों में कमी आएगी, बहुत कमी आएगी और लोग जाएंगे। और अगर नहीं भी आती है तो हज करने के लिए लोग मुसलमान बराबर जाएंगे। इसमें मगर हमारे नाम पर आप एयर इंडिया को क्यों दे रहे हैं पैसा? 450 करोड़ क्यों दिया जा रहा है? 450 करोड़ आप देखिए अंजना जी, मुसलमानों में 2.83% ग्रेजुएट्स हैं, उसमें से कितने मुस्लिम लेडीज ग्रेजुएट होते हैं? 36% खाली, आधे भी नहीं है। तो लिटरेसी रेट में भी मुसलमान मेल से कम है उनका ताल्लुक। तो ये पैसा आप तालीम के लिए इस्तेमाल करिए और हमारे नाम पर हमारे खंधे पर रखकर आप बंदूक मत चलाइए एयर इंडिया को मजबूत करने के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैसा भी किसी भी रिलीजन के रिलीजियस एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। राकेश सिन्हा के बाद मैं आपको लाना चाहती हूँ सर, थोड़ा सा शाहनवाज जी रुक जाइए सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबके रिएक्शन आ जाए। केसी त्यागी जी से एक बार सर पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो कह रहे हैं कि एयर इंडिया ग्लोबल टेंडर नहीं हो, ग्लोबल टेंडर हुआ है और कई बार एयर इंडिया नहीं भी गई है। ओवैसी साहब की जानकारी के लिए कह दूं कि 2 साल 3 साल एयर इंडिया नहीं गई, फिर हज कमेटी में कहा कि नहीं हमें एयर इंडिया ही चाहिए। और एयर इंडिया को इस बार सुषमा स्वराज जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने एयर इंडिया जिद करके एयर इंडिया को लगाया, क्योंकि मुसलमानों की डिमांड थी कि अगर दूसरी एयरलाइन जो ग्लोबल टेंडर के जरिए आती है वो हाजियों का ध्यान नहीं रखती जितनी एयर इंडिया रखती है। तो एयर इंडिया के बारे में जो कहा जा रहा है कि एयर इंडिया जाती है तो उससे कोई नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेंडर में भी यही रेट आता है। ठीक है, केसी त्यागी जी, मैं सबके रिएक्शन ग्लोबल टेंडर की वजह से एयर इंडिया को रेट मिलता है। एयर इंडिया अपना रेट जेडीयू की क्या राय है? क्योंकि आज ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन के क्वेश्चनेयर पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। केसी त्यागी, हज सब्सिडी खत्म हो, सही है? हज सब्सिडी पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ओवैसी साहब विद्वान व्यक्ति हैं, जो सच्चर आयोग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत के दलितों से भी बुरी स्थिति में हिंदुस्तान का मुसलमान रहता है, उसका बड़ा हिस्सा अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो हज का किराया है, हज के दौरान जो हुए खर्चे हैं, एक लंबी आ रही रवायात है जिसके तहत सब्सिडी दी जा रही है। अगर मुस्लिम संगठन, उलेमा और काउंसिल के लोग और जो इनकी हज कमेटी के लोग हैं अगर चाहते हैं कि सब्सिडी समाप्त हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये समृद्ध मुसलमानों की मांग है कि सब्सिडी समाप्त होनी चाहिए। गरीब मुसलमान कभी भी मक्का मदीना की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं कर पाएगा जिस दिन सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर, आपकी बात से मैं समझ गई। आपका ये पॉइंट है, क्या ये एंटी पुअर है, मतलब गरीबों के खिलाफ है जो नहीं जा सकते, जिनको सपोर्ट करने के लिए होता है? राकेश सिन्हा जी, आपका रिएक्शन फिर कमाल साहब। मैं ओवैसी साहब से 2 बातें कहना चाहता हूँ, ये दोहरी बातें ना करें।
2014 में जब 2012 में सब्सिडीज का कुल सब्सिडीज 883 करोड़ था, वो घट कर जब 540 करोड़ हो गया तो इनकी पार्टी ने उसकी आलोचना की और कहा कि मुसलमानों को डिप्राइव किया जा रहा है। और आज कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं इस सब्सिडीज का साथ दिया। ये इनकी पार्टी ने कई बार सरकार पर हमले किए जब बीजेपी की सरकार, पिछली एनडीए सरकार थी। आपके पार्टी का रिजोल्यूशन है, आप जब एक्सपोज होते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। आपकी पार्टी का रिजोल्यूशन है जिसमें सरकार की आलोचना की वो संसद में मांग कर चुका है। देखिए, इनका दोहरा रवैया होता है। इनकी पार्टी का रिजोल्यूशन का मामला ये महत्वपूर्ण है। दो बातें और सुन लीजिए। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने कहा हर सब्सिडी का पैसा, आपने कहा हर सब्सिडी का पैसा मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्च हो। इसका तो भारतीय राज्य मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही है। आप यह कहिए, सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, प्रगतिशील बनते हैं, तो आप कहिए हर सब्सिडी का पैसा गरीबों के उत्थान के लिए खर्च हो। इस देश में हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स करने वाले आप सबसे धनी राजनीतिज्ञ हैं। धनी इस मामले में उसको अच्छी तरह आर्टिकुलेट कर देते हैं। आप डिप्रिवेशन, एलियनेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये तीन बातें स्थापित करना चाहते हैं। और आज भी जो आप मांग कर रहे हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है मालूम है? कि मुसलमानों के बीच में फिर आप ही कैंपेन करेंगे। देखिए, इस सरकार ने हर सब्सिडी खत्म कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है आप उसके अनुकूल चलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको फेज वाइज खत्म। लेकिन राकेश जी वो तो खुलकर कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हर सब्सिडी खत्म करो। ये ट्रिपल तलाक के मामले में क्या कर रहे हैं? ये ISIS के मामले में क्या कर रहे हैं? हर सब्सिडी में तो कह रहे हैं ना, खुल के कह रहे हैं। नहीं, देखिए पर्दे के पीछे थोड़ी कह रहे हैं। उसमें कहाँ आपत्ति है? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पूरे सामाजिक दर्शन को देखे कीजिए। एक आदमी ट्रिपल तलाक के बारे में क्या राय रखता है, एक आदमी ISIS के बारे में क्या राय रखता है। यह जो उनका है ये डिप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एलियनेशन की एक फीलिंग मुसलमानों में डालकर इन सबका जवाब इससे लेंगे और एंटी पोर वाले सवाल पर भी जवाब देंगे। उससे पहले कमाल फारूकी साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हज सब्सिडी खत्म होना चाहिए? देखिए, राकेश भाई जो है वो बहुत गलत बात कर रहे हैं और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि बड़े विद्वान हैं वो। जहां तक इसका सब्सिडी का ताल्लुक है, बिल्कुल जो ओवैसी साहब ने जो कहा है उसको टोटलिटी में देखिए। सिर्फ एक हज सब्सिडी को नहीं देखिए बल्कि इस पूरे परिक्रमा के ऊपर जो है हम लोग बहुत जोर शोर मचाकर ये कह रहे हैं कि जो हज का इंतजाम है वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि उसके अंदर हम इकोनोमाइज कर सकें। और उसको जो हमने बाकायदा तबुंग हाजी जो मलेशिया का जो वो है बाकायदा उसको डॉक्यूमेंट बनाकर दिया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल उसके ऊपर तो नजर कोई हो नहीं रही है। और जहां तक ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ मुसलमानों को सब्सिडी मिल रही है, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर उससे कहीं ज्यादा गुना पैसा खर्च करती है। लेकिन हम इसको कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे। उदाहरण दीजिए। और मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। देखिए, हज का सब्सिडी खत्म हो या नहीं, पहले हाँ या ना में ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दे दीजिए, फिर बोलिए। आपका कोई भाई देखिए, अंजना जी कोई इस बात का मैं जैसे आप मेरे मुंह में जबान डालनी चाहेंगे वो तो बात नहीं कहूंगा ना मैं। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए कि जहां तक हज सब्सिडी का ताल्लुक है और ये गलत कह रहे हैं कि गरीबों को हम बहुत इसमें फायदा मिलेगा। गरीबों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके घरों में शादियां होनी बाकी हैं, जो कर्जदार हैं, उनके ऊपर हज फर्ज नहीं है। ये पता होना चाहिए राकेश सिन्हा साहब को। तो इसमें कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता। गरीबों के लिए फर्ज नहीं है, लेकिन आप तो और बहुत सारी चीजें आप स्टैंड लेने से डर रहे हैं क्या कमाल फारूकी साहब? आप स्वयं बताइए ना, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। स्टैंड लेने से डर रहे हैं क्या कमाल फारूकी साहब? क्या आप क्लियर स्टैंड लेने से डर रहे हैं? सामाजिक दर्शन लेकर मत आपसे डरेंगे क्या? अंजना जी के आपसे डरेंगे या राकेश जी से डरेंगे? आप स्टैंड लेने से डर रहे हैं? आप ऐसे समझते हैं कि आपके हाथ में डंडा है? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि क्लियर स्टैंड लेने से हर कोई डरता है, सरकारें पार्टियां डरती हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तेजित ना हो। मेरा सिर्फ इतना पूछना है सर कि ओवैसी साहब क्लियर स्टैंड ले रहे हैं और कई लोग उनके समर्थन है। टोटलिटी में देखिए, टोटलिटी में देखिए। अच्छा है, अच्छा कह रहे हैं की कोशिश कीजिए तो आप अपना कल्चर पैदा कर रही हैं, मत कीजिए ऐसा। आप हमसे राय ले रही ना, हम बता रहे हैं कि भाई गरीब आदमियों को हज करना फर्ज नहीं है, पहले उनके ऊपर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको देखें। वो जहां तक सब्सिडी का ताल्लुक है, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए सब्सिडी, हमको उसका इंतजाम कायदे में चाहिए। जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, मैं आपकी बात एक छोटी सी बात मैं इसका इतिहास एक बार इसका इतिहास देख लीजिए। देखिए, आजादी के बाद मुगल लैंड शिपिंग कॉर्पोरेशन सब्सिडी देता था। उस मुगल लैंड शिपिंग कॉर्पोरेशन को नेहरू सरकार ने हो ही रही है।
धीरे धीरे चाहने से या मेरे चाहने से नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, ओवैसी साहब से एक मेरा सवाल है, जो केसी त्यागी जी ने कहा है, क्या इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे जो पूछा था वो पूछा था, क्या इसको एंटी पुअर बनाकर एक रंग दिया जाता है? क्या ये एंटी पुअर है जो आप कह रहे हैं हर सब्सिडी खत्म? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको शायद सहायता की जरूरत है। देखिए, केसी त्यागी साहब जो है वो जानते नहीं है सब्सिडी किस लिए इस्तेमाल हो रही है। सब्सिडी मुसलमान के नाम पर एयर इंडिया को दी जा रही है। 10 साल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 साल में खत्म करिए। मैं कह रहा हूं आज खत्म करिए। ये 450 करोड़ रुपये जो इस साल बजट में दिए गए, आप 200 बच्चियों के लिए या 200 हॉस्टल खोलिए बच्चियों के लिए, और आप देखिए कि देश में एक नया इनकलाब पैदा होगा। मुसलमानों में कमजोरी जो है तालीम की है, और खासतौर से हमारे बच्चियों में वो स्कूल को जाना मुश्किल है, ग्रेजुएशन को दूर नहीं जा सकती हैं। तो ये सब चीजें उसको पूरा करने की जरूरत है। और मेरा टोटल डिमांड ये है कि इंडिया जो मुल्क हमारा है भारत, इसमें आखिर क्यों गवर्नमेंट किसी भी मजहबी फेस्टिवल में या पैसा क्यों लगाएगी? मत लगाइए, बंद करिए ना। नहीं दिया जाता आप है। दिखा दीजिए कि किसी भी हिंदुस्तान का किसी का भी त्योहार होगा उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, किसी में नहीं लगाएंगे पैसा, 20 साल से कर रहा है, किसी में नहीं लगाएंगे। टैक्स पेयर कोई नई बात नहीं कही है। 20 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डिमांड कर रहा है कि हर सब्सिडी समाप्त हो। किसी भी धार्मिक मामले में राज्य इस प्रकार की सहायता नहीं दे सकती है। सांस्कृतिक मामलों में सहायता देना, कैलाश मानसरोवर में जो सहायता दी जाती है वो एक सांस्कृतिक यात्रा है, वो धार्मिक यात्रा नहीं है। आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं वो सांस्कृतिक यात्रा है। सांस्कृतिक यात्रा और धार्मिक यात्रा के बीच बुनियादी अंतर को समझना वो सांस्कृतिक है। अब अंजना जी, अब अच्छा तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो चीन के अंदर से जाती है वो रिलीजियस नहीं है, वो कल्चरल है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी वो? किसी भी मजहब में टैक्सपेयर का पैसा क्यों इस्तेमाल होगा? नहीं, किसी आप स्कूल खोलिए, यही तो है अंजना जी, यही तो प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियन मरेगा भी तो इस मुल्क पर बोझ बनेगा। मैं मरता हूं तो मेरा स्टैचू बनेगा, मैं मरता हूं तो मेरे नाम से पार्क बनेगा। अरे गरीब को रहने को जगह नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, और आप मेरे नाम पर एयर इंडिया को दे रहे हैं। इस मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा किसी पार्टी का नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम का है। और ये पैसा किसी भी मजहबी फेस्टिवल में, चाहे वो कल्चरल के नाम पर, उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रिलीजन में क्यों इस्तेमाल होगा? रिलीजन मेरा मैटर है, मेरा प्राइवेट मैटर है। सभी को सूट करता है ये क्या? सिन्हा जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट जो वैसे साहब बोले। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये कह रहे रिलीजन पर्सनल मामला है, लेकिन रिलीजन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भारतीय राजनीति में ओवैसी कर रहे हैं। रिलीजन को एक सामूहिक मामला बनाकर और मुसलमान के डिप्रिवेशन की बात करते हैं। आप सामान्य नागरिक की बात नहीं, सिलेक्टिव आधार पर सिलेक्टिव सोशलिज्म इनका है। आज ऐसा लग रहा है जैसे ओवैसी से मैं किसी मुस्लिम लीडर से नहीं, किसी समाजवादी नेता से बात कर रहा हूँ। ये इमेज मेकओवर की जो आपकी कोशिश है ना, उसको आप बृहत रूप से ठीक है। पर सब्सिडी यानी सरकार एक हिस्सा जो हज पर खर्च होता है उसका अपनी तरफ से दे, उस सब्सिडी को खत्म करने की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और पहले से भी उन्होंने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस देश का कहा है 2012 में साफ शब्दों में कि धीरे धीरे इसे फेज आउट करना जरूरी है। धीरे धीरे जो फंड इसके लिए दिया जाता है उसको भी कम किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है इसको फौरन खत्म किया जाना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि तमाम लोगों ने जो बात कहा है उस पर ओवैसी साहब, मेरा सीधा सवाल है, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपना इमेज मेकओवर कर रहे हैं? इसलिए ये क्या है, मतलब छवि परिवर्तन? अरे मैडम, मैं तो हिंदुस्तान का सबसे बदनाम आदमी कोई है तो वो मैं ही हूं ना। मैं ही टेररिस्ट हूं, मैं ही आईसिस का सपोर्टर हूं। सब बुराइयां मुझ में हैं और तमाम के तमाम दूध के धुले हुए हैं। मेरा इमेज मैं कभी नहीं चेंज करूंगा, ना मेकअप लगाऊंगा, ना कोई एक बात करूंगा। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं कि मुझे फिक्र है कि मुसलमानों की जो तालीम की जो पसमानदगी उसको दूर होना जरूरी है। और ये गैर जरूरी मेरे नाम से आप एयर इंडिया को दे रहे हैं।
आप अगर 6 साल के बाद खत्म हो जाएगा तो क्या मुसलमान हज करने नहीं जाएंगे? बराबर जाएंगे। वो पैसा आप इस्तेमाल करिए ना तालीम के लिए, स्कूल के लिए। और मैं एक लार्जर पॉइंट ये मेक कर रहा हूं कि भारत सरकार क्यों किसी भी मजहबी त्योहार में पैसा अपना लगाएगी? आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होगा तो स्कूल के लिए होगा, कॉलेजेस के लिए होगा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। के लिए होगा, आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन लिया, समझ लिया। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि मोहम्मदी सूरा में हज किसी भी सहायता से हज को अन इस्लामिक कहा गया तो हम सब जानते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब इतनी ही बात आप कहते हैं कि रिलीजन पर्सनल अफेयर नहीं है तो आप क्यों नहीं डिमांड करते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, एक सामान्य यूनिवर्सिटी बनाओ? इस देश में धर्म के आधार पर क्यों शिक्षण संस्थाएं चले? एक तरफ आप धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की मांग करते हैं, एक तरफ आप धर्म के आधार पर सभी प्रकार की सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, जवाब दे रहे हैं। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सुनिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का डेफिनेशन जो भारत सरकार ने दिया उसमें मुसलमान शामिल है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 के तहत ये तमाम सहूलतें मिलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए। किसी को भी नहीं पता। त्यागी साहब राकेश जी के विचार की समर्थक पार्टियां लंबे समय से इस सवाल को उठाती रही। आज ओवैसी साहब के हिमायत करने के बाद राकेश जी के विचारों की पार्टियों की बात से खिल गई है। अब उन्होंने हज सब्सिडी के बाद AMU उठाया है, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उठाएंगे। ओवैसी जी, आप इनके मंसूबों को समझिए। आपकी 1 इंच की जो सफाइयत है वो इनको 1000 मामलों में आपको उलझाने के लिए काम आएगी। ओवैसी साहब, हज सब्सिडी सीमित नहीं है। ओवैसी साहब को मिलने वाली अल्पसंख्यक को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं राकेश जी का विचार हर चीज का विरोध करेगा। ओवैसी साहब, त्यागी जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, नीतीश कुमार को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड का डेफिनेशन मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या नीतीश कुमार जब गोधरा की ट्रेन जल रही थी, गुजरात का फसाद हुआ, तो क्या नीतीश कुमार मोदी के बीजेपी के सरकार मिनिस्टर नहीं थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैंने लिखकर दिया है लॉ कमीशन को कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। बताइए कि आपकी पार्टी ने क्या लॉ कमीशन? अरे मैं इनको जवाब दे दूंगा। आपको ख्याल आ रहा है? ओवैसी साहब, आप संविधान के तहत मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान रहे थे, संविधान को सिलेक्टिव नीतीश कुमार उसी संविधान उसी त्यागी को धर्मनिरपेक्षता की तालीम की जरूरत आपसे नहीं है। आप जैसे लोगों से तालीम की जरूरत हमको नहीं है। हमने तो जमाने को तालीम में वफा दिया। आप कौन होते हैं, क्या हैं आप जो हमसे धर्मनिरपेक्षता का मांगेंगे? आपके जैसे क्रिमिनल आदमी को हमसे धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद की, आप हमसे सर्टिफिकेट मांगे जो दिन भर में देश भर में फसाद फैलाने काम करते हैं। मैं दोनों को जवाब देता हूँ। 10 सेकंड। मैं त्यागी जी और ओवैसी साहब दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। त्यागी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, सांसद रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, लेकिन संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। त्यागी जी, ये संघ के संविधान में नहीं, भारत के संविधान में कहा, भारतीय संघ के संविधान में कहा गया है। उसका आप भी विरोध कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी विरोध कर रहे हैं। आप दोनों में क्या बुनियादी फर्क रह गया? जो त्यागी जी कह रहे हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए ओवैसी साहब। मैं इन दोनों पढ़े लिखे लोगों से पूछ रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड का डेफिनेशन बता दीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज पहले आएंगे या फंडामेंटल राइट्स पहले आएंगे, मुझे बता दीजिए। तीसरा है कि बीजेपी सिर्फ आर्टिकल 44 और 48 के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्यों नहीं बीजेपी पूरे मुल्क में शराब पर पाबंदी लगा दीजिए ना? वो भी तो संविधान कह रहा है, वो भी तो संविधान कह रहा है ना। आप उसकी फिक्र नहीं करते। और त्यागी जी, मैं वो हूं जो आप जैसे लोगों के सामने आंख में आंख डालकर बात करूंगा, क्योंकि हमने 65 साल आप लोगों की खवाली सुनी और धोखा खाए। हम ना बीजेपी से डरकर आपका साथ देंगे, ना हम मजबूरी में आपका साथ देंगे। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, हम आपको मनवाएंगे। इसलिए कि जमहूरियत हम का मतलब यदि मुसलमान कहते हैं गलत है। हम का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब होता है। आपके हम का मतलब एक संप्रदाय होता है।
इसी राजनीति का हम इनकी निंदा करते हैं, इसी राजनीति को हम तोड़ना चाहते हैं। हम का मतलब भारतीय समाज हो, आपका हम का मतलब होता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम क्या कर देंगे। पहले अपने बयान की निंदा कीजिए, पहले अपने बयान से वापस आइए। जो हैदराबाद में आपने कहा कि पुलिस केस चल रहा है, आप कैसी सिलेक्टिव सेक्शन की बात कर रहे हैं। और मैं दूसरे एक ओवैसी साहब एक इतनी बात कह दूं, आजादी कितने साल बाद, हैदराबाद की इंटीग्रेशन के बाद आज तक आपकी पार्टी हैदराबाद की इंटीग्रेशन देखो ब्लैक डे मनाती है। मैंने आज तक पर कई बार कहा, आप कहिए 17 सितंबर को आप ब्लैक डे नहीं मनाते हैं। एक तरफ तो हम फिर वहां पहुंच जाएंगे, फिर बार बार क्यों कैसे बनते हैं। एक सेकंड, सर्टिफिकेट आपको अलग से आप इशू कीजिएगा, जो जिस मुद्दे पर हम उस पर है। फारूकी साहब, देखिए बात क्या है कि ये बिल्कुल आपने इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया। बेसिकली जो दो बातों का ध्यान रखिए, एक तो ये है कि चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। राकेश भाई हमारे बहुत होशियार हैं चीजों को एकदम से मिक्सअप करने का। हज सब्सिडी और यूनिवर्सिटी का मामला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेपरेट इश्यूज हैं, इनको अलग अलग करके डील कीजिए। हज सब्सिडी के मामले के अंदर मुसलमान बाई एंड लार्ज जो है कभी भी इस फेवर में नहीं रहे कि हम हज सब्सिडी हमको दीजिए। हमारा कहना यह है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो जाए, और अगर ये प्रोफेशनल अंदाज में चलाई जाएगी तो हमको किसी हज सब्सिडी की जरूरत नहीं रहेगी। हम काफी इकोनॉमिकल इसको अचीव कर लेंगे। ये बात बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए दूसरी बात का 1-2 मिनट और रुकिए। जो दूसरी बात यह है कि ये बात मजहबी तौर के ऊपर बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ज़कात है, ज़कात एक उसके ऊपर फर्ज है जो सब्सटेंशियल जिसके पास अमाउंट मौजूद हो, उसी तरह से हज उसके ऊपर फर्ज है जो बाकी और किसी का लोन न लेना हो, किसी को कुछ देना ना हो, उसके घर में खाने पीने के लिए सब कुछ हो, कोई लाइबिलिटी ना हो, तो जो गरीब आदमी है उसके लिए फर्ज नहीं है। अगर वो जमा पूंजी करके जाता है तो उसकी अपनी मर्जी है। तीसरी बात यह है कि इल्म सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास और ऐसी यूनिवर्सिटी खुलवाइए। ये सिन्हा साहब जो है ये अपने ही मंत्रालय का जो अभी 5 यूनिवर्सिटीज उन्होंने खोलने का लिए कहा है, तो जरा उनको जाकर क्लियर कर दें मुख्तार भाई को, क्योंकि राकेश सिन्हा साहब अलीगढ़ पिता बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि पता नहीं अगर मुसलमानों को, मुझे लगता है शाहनवाज जी को इसका जवाब देना चाहिए। शाहनवाज जी इसका जवाब दीजिए। शाहनवाज जी, उसके बाद आ रही होगा। देखिए सवाल ये है कि हमारी सरकार अगर हज सब्सिडी पर ही खर्च कर रही है, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट का पैसा मुसलमानों पर इसी मामले पर खर्च हो रहा है? हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भारतीय होने के नाते उनकी खिदमत करते हैं, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अगर हम स्कूल ज्यादा खोलेंगे, हम रोड ज्यादा बनाएंगे, हम देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, जिस तरह प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खुलाया, हम समाज में चिंता कर रहे हैं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। अगर नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा गरीब की फिक्र कर रहे हैं, तो उसमें मुसलमानों का पार्ट होगा कि नहीं? या कल हो गए ओवैसी साहब कहेंगे प्रधानमंत्री मुस्लिम सड़क योजना या प्रधानमंत्री मुस्लिम स्कूल योजना, हम नहीं कर रहे हैं। हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी सब शिक्षा अभियान लेकर आए तो सबके लिए ले आए, सड़क लाए तो सबके लिए लाए। आज जिनको सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा ये फर्ज है कि हम इस देश के हिंदू की जितनी फिक्र करते हैं, मुसलमान सिख ईसाई की नहीं करते। मेरे कुछ सवाल आज लोग त्यागी जी लोग उसको या ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वो एक मजहब और बिरादरी को लेके, हम हिंदुस्तानी मानकर, भारतीय मानकर, अपना फर्ज और जिम्मेदारी मानकर खर्च कर रहे हैं। और आप 540 क्या कर रहे हैं? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो उससे ज्यादा देने वाली है, लेकिन नाम लेकर देने वाली नहीं है। हाँ ठीक है। ओवैसी साहब, अब मेरा सवाल है, 2012 में 837 करोड़ था, जो कि 450 करोड़ 2016 में फंड एलोकेट हुआ है। हर चीज को भारतीय चश्मे से देखते हैं। ठीक है सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे स्कूल खुले, तो क्या आप कह रहे हैं कि वो ऐसे स्कूल खुले जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चियां जाएंगी? क्या आपको नहीं लगता है कि समाज में और भी एक बंटवारे की तरफ बढ़ते हुए हम चले जाएंगे अगर हम इस तरह से सोचें और इस तरह से आगे बढ़े? तो मतलब वो कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा वो पैसा 450 करोड़? आपका सवाल बिल्कुल सही है। 2011 का सेंसस आया, सबसे ज्यादा इलिटरेसी अगर किसी में है तो मुसलमानों में है।
सबसे ज्यादा इलिटरेसी अगर फीमेल्स में रिलीजियस वाइज देखें तो किसमें मुसलमानों में है, सबसे कम अगर ग्रेजुएट्स हैं मुसलमानों में और सबसे कम फीमेल में है तो मुसलमानों में। मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ में सुनिए, राइट टू लाइफ में इनको खामोश बिठाइए, इनको खामोश बिठाइए, आप बोलने एक बार वो बात पूरी कर, एक बार बात, ये तो अपना भाषण दे रहे हैं, ये तो नहीं, वो बता रहे हैं कि कैसे, क्या बता रहे हैं, ये तो वही बात बता रहे हैं। एंड पर्पस तक पहुंचते हैं, दो सवाल पूछूं, एंड पर्पस तक पहुंचते हैं कि 450 करोड़ को कैसे इस्तेमाल की बात, 450 करोड़ से ऐसे स्कूल कॉलेज खोले जाएं जिसमें बीपीएल के बच्चे पढ़ें, बीपीएल में हिंदू मुसलमान। ठीक है, जवाब दीजिए वैसे, भारतीय हूँ। ठीक है वैसे साहब जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं राकेश सिन्हा से पूछना चाह रहा हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने क्यों कमेटी बनाई कि मुसलमानों के लिए 5 यूनिवर्सिटी सरकार खोलेगी? आप जाके रुकाइए ना उनको। आप टीवी पर एक बात बोलते हैं, आपको मोदी सरकार को पोस्ट नहीं दी है तो आप गुस्सा मोदी को निकालिए, हम पे क्यों निकाल रहे हैं? आप जाके पूछिए ना। और दूसरी बात, और दूसरी जो दुरुपयोग कर रहे हैं, देश में बंटवारा हो रहा है, 2 आइडेंटिटी थ्योरी का वो एक निशान है। इसको मैं एमएच बेट को न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के आधार पर शिक्षण संस्थाएं 2 आइडेंटिटी, 2 पहचान के सिद्धांत पर आधारित हैं और हमें उसी 2 पहचान को मिटाना है। इस देश में एक पहचान होना चाहिए, 125 करोड़ लोग। जवाब सुन ले सर उसका, जवाब उसके बाद आ रही हूँ फौरन शाहनवाज जी। वैसे साहब देखिए, 4.5 आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में क्या एमसीडी पे नहीं है? क्या स्कूल्स नहीं खोले जा रहे? क्या मदरसों के पैसे नहीं दिए जा रहे? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि इन पैसों को जो आप मुसलमानों के लिए हज के लिए इस्तेमाल कर रहे, स्कूल खोलिए। ये सबसे कमजोर हम लोग तालीम में हैं। हिंदुस्तान अगर सुपर पावर बनना चाहता है, चीन से मुकाबला करना चाहता है, तो आप जब तक माइनॉरिटीज को और खास तौर से हमारी खवातीन को आप मजबूत ताकतवर नहीं करें, कैसा करेंगे? तालीम से करेंगे, सिर्फ जबानी अल्फाज से बोलने से नहीं होगा। क्यों भारत सरकार ये स्कीम चला रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? अरे मैं कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाओ भाई। आप स्कूल खोलो, वो 450 करोड़ के आप 200 स्कूल खोल दो। आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हम फिर इस शो पर आएंगे और रिजल्ट देखेंगे। जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो कल कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात कही थी इसने। अरे साहब, पहले धर्म सुधार कर लीजिए। देखिए, मुस्लिम लड़कियों के नहीं पढ़ने के कारण में धर्म आड़े आता है, सामाजिक परिस्थितियां आड़े आती हैं। भारत के स्कूल कॉलेज आड़े नहीं आता है। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। भारतीय राज्य आपकी बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय राज्य जो गरीब है करती है, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करती है। ओवैसी साहब की दिक्कत यह है कि ओवैसी साहब ने जिन लोगों को सरकार में सपोर्ट किया वही जिम्मेदार है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है तो क्या बीजेपी की वजह से? आपने जिन पार्टियों को सपोर्ट किया उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डराया और डराकर उनका वोट लिया कि बीजेपी आ जाएगी इसलिए हमें वोट दे दो। उन्होंने मुसलमानों के मिनिस्ट्री है, हम माइनॉरिटी की फिक्र करते हैं। इंडिया में हम स्कूल कॉलेज खोलेंगे वो हमारा फर्ज है और जो गरीब लड़की है उसका एजुकेशन का लेवल ऊंचा करना सरकार अपना फर्ज बनाती है। बेटी बचाओ मतलब हिंदू मुस्लिम बेटी नहीं, भारत की बेटी। और भारत की बेटी जिस समाज में ज्यादा कमजोर होगी उसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक कंक्लूडिंग जवाब। ठीक है साहब, जी आ रही हूँ। वैसे साहब एक छोटा सा जवाब आपसे। ये कह रहे हैं कि आप अगर स्कूल खोल भी देंगे तो उस सोच को कैसे बदलेंगे सर? उस सोच को कैसे बदलेंगे जिसकी वजह से जो आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां कई जगहों पर ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उसकी एक खास सोच को वजह बताया जा रहा है। वो सोच कैसे बदलेगी? स्कूल खुल भी गए नहीं गए तो ये आप जैसे नेताओं का काम है। एआईएमआईएम ने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपका नहीं आपका नहीं मैं आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को आइए, मैं लिख जाके दिखाऊंगा। आप उसके बाद मुझे जो बोलना है बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सोच गलत है। आप स्कूल खोलिए, डिमांड है स्कूल का मुस्लिम इलाकों में, लोग गिर पड़कर जाके पढ़ाएंगे। और शाहनवाज से मैं कहना चाह रहा हूं, शाहनवाज अगर आप लोकसभा का इलेक्शन हारे तो मुसलमानों की वजह से नहीं हारे। आप बता दीजिए क्यों, किसकी वजह से हारे? आपके पार्टी ने आपको हराया तो आपका गुस्सा किसी और पर निकालिए। स्कूल खोलिए प्लीज। और इस देश का पैसा किसी मजहब के फेस्टिवल में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। यही तो करप्शन है। कोई गुस्सा नहीं है, लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है और मैं बहुत कम वोट से हारा हूं।